Hello, my dear disciples. Hope you all are doing well at your home. Once again, here I am Garima Sharma in front of you, bringing the video of chapter number 4 from your Movements book of ninth class, and the name of the chapter is In the Kingdom of Fools. So, without doing any delay, let's start the chapter. As in my all video, I prepare a short contents so that that means you get the idea that how many things you are going to study in this video, in this presentation, and that will be very easier to you that how much lengthy this video is going to be. Okay, so as I told you, chapter number 4 in the Kingdom of Fools. So here I tried to put some images. Here you can see that this is the image of a disciple, the old time disciple, just like in the Gurukul, and जैसे गुरुकुल स्कूल में होते थे, and this is the image of a guru. So I hope you are just getting the little bit idea that what we are going to study in this video. Okay, so at very first we will talk about contents. At very first we will study about the author, and at second number we will study about the theme of the chapter, then summary, and after that value based question. Actually, value based question I'll ask orally. There I didn't prepare any slide for that because after explaining the summary I'll ask you few questions that will based on your critical thinking. Okay, or you can say the value based question I'm just going to ask. So let's start. As I told you, at very first we will study about the author, and who is the author of this chapter? A.K. Ramanujan. Mr. A.K. Ramanujan, whose full name is Achipet Krishnaswamy Ramanujan. He was a Kannada author. Okay, so let's read little bit about his biography. He was born on March 16, 1922 in Mysuru and died on 13th July 1993 in Chicago. A spouse, that means his wife name Molly Daniels. He got many awards. So first Padma Shri, then MacArthur, then MacArthur Fellowship, then साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है, जो लिटरेचर में दिया जाता है. Then here I try to mention some little bit, that means more, just like an Indian poet. He was an Indian poet and a scholar of Indian literature. ठीक है, wrote his work in, just like he belongs from Karnataka, क्योंकि जो कन्नड़ लैंग्वेज है, कन्नड़ पोइट, यू कैन से कन्नड़ ये ऑथर थे, तो कन्नड़ लैंग्वेज कहाँ की है? कर्नाटक की, तो इसलिए इंडियन लिटरेचर थे. रोट हिज वर्क इन द बुक इन बोथ कन्नड़ एंड इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में भी लिखी है, कन्नड़ लैंग्वेज में भी इन्होंने लिखी है. दिस स्टोरी इज, दैट मीन्स द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, which is going to read. This story is from his famous book and the name of the book is Folk Tales from India. ठीक है, यानी ये जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं ये आपकी इंडिया की फेमस बोल सकते हैं टेल स्टोरी बुक फोक टेल्स ऑफ इंडिया. सो एट द वेरी नेक्स्ट स्लाइड वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी अबाउट द थीम ऑफ द चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट द थीम, दैट मीन्स कि क्या इसकी विषय वस्तु बोलते हैं हिंदी में, कि क्या इसकी जो आधारशिला है, किस बेस पे चैप्टर लिखा गया है. ओके, so this humorous story, funny story है, is based on foolish king and so as his minister. foolish king एक बेवकूफ़ राजा और उसके उसी तरह का, यानी कि जैसे बेवकूफ़ राजा है ऐसा ही उसका मंत्री है. Here author wants to say how difficult to treat with foolish person. I think occasionally you have ever met with foolish people, you can say, किसी just like इस तरह के पीपल से, इस तरह के पर्सन से आपकी कभी इंटरेक्शन हुआ होगा, तो उनकी बातें समझना और उनको डील करना दैट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क. तो यहाँ पे जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि फुलिश पर्सन को, क्योंकि वो सबको अपने जैसा समझते हैं, तो उन्हीं की लैंग्वेज में अगर पॉसिबल हो तो यानी कि वो समझते हैं कि ये पागल है सामने वाला, जस्ट लाइक कि ये जो बोल रहा है ये गलत बोल रहा है. ठीक है, तो दैट्स वाई द ऑथर सेड है दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट विद फुलिश पर्सन. ठीक है, उनको उनके साथ डील करना, उनको ट्रीट करना, उनके साथ डील करना दैट्स वेरी डिफिकल्ट.
हाउ मच डिफिकल्टी वॉज बींग फेस्ड बाय द सब्जेक्ट ऑफ दैट किंगडम, और कितनी वो परेशानियां फेस की जा रही थी उस राज्य के जो कौन थे, सब्जेक्ट होती है प्रजा, ठीक है। दो द सब्जेक्ट इज नॉट फूल, जबकि देखा जाए जो प्रजा थी वो बेवकूफ नहीं थी, बट दे आर बाउंड टू फॉलो किंग्स फुलिश ऑर्डर्स, लेकिन क्या करें, मजबूर थे, जो उस राजा के फुलिश ऑर्डर थे उनको फॉलो करना उनकी मजबूरी थी। एंड एज अकॉर्डिंग द फेमस प्रोवर्ब, जो कि आपने सुना भी होगा, फेमस कहावत है एक, एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट, की जैसी जैसा राजा वैसी प्रजा। अब राजा इसमें बेवकूफ़ है तो प्रजा को ना चाहते हुए भी बेवकूफ़ बनना पड़ता है, ठीक है। दैट्स वाई द टाइटल इज सिग्निफिकेंट हेयर, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द टाइटल इज सिग्निफिकेंट हेयर इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ठीक है। फूल्स कैन ओनली बी ट्रीटेड बाय वाइज मैन, यहाँ पे ऑथर क्या फिर से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फूल्स हैं उन्हें सिर्फ वाइज मैन ही ट्रीट कर सकते हैं। अब इनमें कौन दो वाइज मैन यहाँ पे आने वाले हैं, लेट्स सी who will deal with such type of foolish king or his foolish minister. So let's see. So here I just tried to just mention all the summary, that means the complete summary, you can say all the points I tried to include in this summary so that you will not face any type of problem, okay, and you, that will be easier for you to find the question, to find the answers of the questions, or that will be easy to find the critical based questions answer. Okay, so let's start the summary. By this story that is penned down by A.K. Ramanujan is telling us about the foolish behavior of a foolish king and his foolish minister. Okay, दे अनाउंस डे एज नाइट एंड वाइस वर्सा, उन लोगों ने क्या किया होता, दिन को तो रात और रात को दिन, उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे चलता था, ठीक है। और यानी कि जैसे लाइक हम लोगों के सारे काम दिन में, जैसे लाइक हम जॉब पे जाते हैं या बच्चे स्कूल जाते हैं, और जो भी आपके डेली वर्क होते हैं दिन के, ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा होता था, यहाँ पे दिन में लोग सोते थे और रात में अपने काम पे निकलते थे, ठीक है। पीपल वर हेल्पलेस टू फॉलो द रूल्स, अब लोग जो थे बेचारे हेल्पलेस यानी कि मजबूर थे रूल्स को फॉलो करने के लिए, ना चाहते हुए भी। इन केस ऑफ डिसोबेइंग रूल्स, अगर कोई डिसोबे करता था, रूल का उल्लंघन करता था, वन हु वुड बी हैंग्ड ऑन स्टेक, तो उसको कहाँ पे लटकाया जाता था, स्टेक यानी कि फांसी के फंदे पे लटकाने का वहाँ पे हुक्म दिया गया था। वंस, एक बार की बात है, अ गुरु एंड हिज डिसाइपल वेंट देयर एंड फाउंड एवरीथिंग स्ट्रेंज, भाई एक बार वो वहाँ पे पहुँच गए और देखा कि यहाँ पे तो सब कुछ उल्टा पुल्टा है, यानी कि दिन को रात बोल रहे हैं, रात को दिन। जब गए थे तो वो दिन के टाइम गए थे तो सारे में सब मतलब सोए हुए थे, उन्हें सारी शॉप वगैरह बंद हुई मिली थी, दोनों बहुत भूखे थे। दैट पॉइंट, फ्यू पॉइंट्स आई डिड मेंशन हियर जस्ट बिकॉज ऑफ टू रिड्यूस द समरी। तो वो दोनों भूखे थे, उन्हें सारी शॉप बंद मिली, फिर शाम को जैसे ही शाम का टाइम हुआ तो शॉप वगैरह खुली, तो दैट वाज द वेरी स्ट्रेंज थिंग फॉर देम, तो उन्हें ये चीज़ें बड़ी अटपटी लगी। गुरु सजेस्टेड टू गो बैक फ्रॉम देयर, अब गुरु, क्योंकि गुरु हैं, आगे तक का जो एक फोर साइटेड नेस, उनकी जो फोर साइटेड एक यू कैन से एक उनके अंदर क्वालिटी है, वो आगे का पता लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो उन्हें सब कुछ ठीक नहीं लगा, उन्होंने सजेस्ट किया कि चलो वापस चलते हैं वहाँ से, बट द डिसाइपल डिडंट वांट, वो ऐसा नहीं चाहता था। क्यों? एज एवरीथिंग वाज ऑफ द सेम कोस्ट, यहाँ पे एक क्या जो डिसाइपल था, वाई ही डिडंट वांट टू गो फ्रॉम देयर, रीज़न वॉज दैट कि जो वहाँ पे सारी चीज़ें थी, फ्रूट से लेके वहाँ पे चाहे राइस हैं या वीट हैं, कोई भी सामान आपको वहाँ पे खाने का लेना हो तो सबके जो कॉस्ट थी सेम थी, एंड द कॉस्ट वाज 1 डुडू। ये वहाँ की एक पुरानी करेंसी थी जो उस टाइम में जैसे कि दिनार सिक्के वगैरह चलते थे, दैट वाज द 1 डुडू, यानी कि ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती थी। तो डिसाइपल ने कहा भाई मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगा, यानी कि थोड़ा वो लालची टाइप का भी यहाँ पे दिखाया गया है। गुरु वेंट फ्रॉम देयर, अब गुरु उसको वहाँ पे छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, लिविंग हिज डिसाइपल देयर, ठीक है। ही बिकेम टू फैट ईटिंग मैनी थिंग्स, अब जो डिसाइपल है वो खा खा के बहुत मोटा हो गया था, ठीक है। वन डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट, अब एक दूसरी कड़ी इसमें जुड़ती है, ठीक है। वन डे, एक दिन, एक थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक अमीर व्यापारी के घर में वो घुस गया, मेकिंग अ होल इन द वॉल, एक वॉल थी उसमें एक होल बना के वो घुस गया, ठीक है। व्हेन ही वाज कैरिंग आउट हिज लूट, और जब वो लूट का सामान बाहर निकाल के ले जा रहा था, द हाउस वॉल कोलैप्स ओवर हिज हेड, तो वो जो दीवार थी काफ़ी पुरानी थी, उसके सर पे टूट गई और उसकी, एंड ही डाइड इंस्टेंटली, और उसकी मौके पे ही उसकी डेथ हो गई। द थीव्स ब्रदर वांटेड जस्टिस बाय द किंग, अब जो थीव का ब्रदर था अब उसको न्याय चाहिए। देखिए वो खुद चोरी करने गया, लेकिन
ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब चोर है सजा मिल जाती है, लेकिन अब वो मर गया है तो जो ब्रदर है वो जस्टिस मांगने राजा के पास गया। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। आगे क्या होता है, अब उसके बाद जब वो राजा के पास जाता है, द किंग समॉन द मर्चेंट, और क्या कहता है कि इस तरह से पूरी स्टोरी बताता है कि मेरे भाई की, ये तो नहीं बताता चोरी करने गया था, वो ये कहता है कि मेरे भाई की, इनकी कि एक मर्चेंट जो है जिसके यहाँ पे गया था, दीवार गिरने से डेथ हो गई है। बट ही सैड, अब वो क्या कहता है, द किंग समॉन द मर्चेंट, अब जो मर्चेंट है उसको बुलाया जाता है, बट ही सेड, अब वो अपना बचाव करता है, मर्चेंट इसमें जो व्यापारी है वो अपना बचाव करेगा, दैट इट वाज द फॉल्ट ऑफ ब्रिकलेयर, वो कहता है अरे भाई इसमें मेरी क्या गलती है। ठीक है, अब उनको ये भी मालूम था कि जो राजा है ये फुलिश है, क्यों ना उसका कुछ एडवांटेज उठाया जाए, एटलीस्ट अपनी जान तो बचा ही सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये मेरी गलती नहीं है, ये तो ब्रिकलेयर, जो ब्रिकलेयर होते हैं ना, मिस्त्री जो होते हैं, जो मतलब दीवार बनाते हैं चिनते हैं, ये तो उसकी गलती है, तो आप मुझे क्यों सजा दे रहे हैं। उसके बाद राजा समझता है, सोचता है हाँ भाई बात तो सही कह रहा है, चलिए अब ब्रिकलेयर जो है, ब्रिकलेयर बोलते हैं जो मिस्त्री होता है, उसको मेसन भी बोलते हैं, MASON मेसन, यहाँ पे ब्रिकलेयर दैट इज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड। ही सेड हिज माइंड वॉज डिस्ट्रैक्टेड, अब उसको बुलाया जाता है ब्रिकलेयर को, उसने कहा कि जो उसका माइंड था वॉज डिस्ट्रैक्टेड, वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट किया गया, हटाया गया उसके काम से, दैट टाइम कि जब वो दीवार बना रहा था, टुवर्ड्स अ डांसिंग गर्ल, कि उसका जो माइंड था वो एक डांसिंग गर्ल की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो गया था। अब रीज़न क्या था उसका, डांसिंग गर्ल, यानी कि उस टाइम पे एक गर्ल इसमें बताई है जो नॉर्मली शादी वगैरह में डांस करती होगी, तो वो, देन द गर्ल वॉज समॉन, तो उसकी वजह से उसका दिमाग जो था यानी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। अब वो बोलता है कि राजा बोलता है चलो अब लड़की को बुलाओ, अब उस गर्ल को बुलाया जाता है, प्रोटेक्टिंग हर सेल्फ शी वॉज ब्लेमिंग। अब इस टाइम तो वो क्योंकि बूढ़ी हो गई है, वॉल जो थी बहुत पुराने टाइम में बनी थी, जो मर्चेंट था तो काफ़ी पुरानी दीवार थी, तो मर्चेंट के फादर के टाइम में बनी होगी, तो अब वो बेचारी बूढ़ी हो गई थी, अब वो किस तरह से अपना बचाव कर सकती है, तो उसने क्या कहा, प्रोटेक्टिंग हर सेल्फ, खुद को बचाते हुए, शी वॉज ब्लेमिंग अ गोल्ड स्मिथ, अब वो जो वहाँ पे गोल्ड स्मिथ होता है सुनार, सुनार को ब्लेम करते हुए क्या कहती है, टू whom शी यूज टू गो, जिसके पास वो जाती थी, फॉर हर ज्वेलरी, अपनी ज्वेलरी लेने के लिए, क्योंकि उसने सुनार को ऑर्डर दिया हुआ था। और अनफॉर्चुनेटली उस सुनार की जो शॉप थी, ठीक है, गोल्ड स्मिथ की, वो उसी गली में थी जहाँ पे उस मर्चेंट का घर था, और जहाँ पे वो जो ब्रिकलेयर था वो दीवार बना रहा था। तो जब वो लड़की गुजर के जाती थी तो उसके पैरों की जो घुंघरू की जो उसने पायल पहनी हुई थी, उनकी जो आवाज़ होती थी, उन आवाज़ की वजह से वो अपना कंसंट्रेशन दीवार पे नहीं कर पाया, इस वजह से दीवार उसकी वीक बन गई और वो गिर गई। ठीक है, नाउ ही वॉज सेंट फॉर द कोर्ट, किसको बुलाया गया, अब गोल्ड स्मिथ, क्योंकि सेंट फॉर का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे वर्ड है समॉन, सेंट फॉर, जैसे सेंट माने होता है भेजना, लेकिन सेंट फॉर, सेंट के साथ फोर आते ही मीनिंग चेंज हो जाता है, ये हो जाता है कॉल्ड, उसको बुलाया गया, किसको, जब गर्ल ने ब्लेम किया गोल्ड स्मिथ को, तो अब बारी आई गोल्ड स्मिथ को बुलाने की, तो उसको दरबार में बुलाया जाता है। ही सेड दैट ही वॉज प्रिपेयरिंग ज्वेलरी फॉर अ मर्चेंट फॉर वेडिंग, अब वो अपने बचाव में क्या कहता है कि सर, किससे, माय लॉर्ड, मैं तो ज्वेलरी, मैं क्यों नहीं मतलब इसकी ज्वेलरी टाइम पे बना पाया, क्यों मुझे इसको बार बार बुलाना पड़ता था, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक मर्चेंट की शादी के लिए ज्वेलरी बना रहा था, तो मैं उस काम में इतना बिजी था क्योंकि उनका ऑर्डर अर्जेंट था, तो इस वजह से मैं इस डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी को टाइम पे नहीं बना पाया, जिस वजह से इसको बार बार मेरे पास मेरी शॉप पे अपने ज्वेलरी के बारे में पूछने के लिए, लेने के लिए आना पड़ता था। ठीक है, अब दैट्स वाई ही वॉज अनेबल टू मेक डांसिंग गर्ल्स ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स इज द सिनोनिम ऑफ ज्वेलरी। ठीक है, अब अनफॉर्चुनेटली, अब देखिए जिस मर्चेंट की ज्वेलरी वो बना रहा था, अनफॉर्चुनेटली द मर्चेंट वॉज सेम हुज हाउस वॉल हैड फन, अनफॉर्चुनेटली वो मर्चेंट वही निकला जिसके घर की दीवार उस थीफ के ऊपर गिरी थी और वो मर गया था। नाउ द मर्चेंट क्राइड दैट हिज फादर गेव ज्वेलरी ऑर्डर, अब वो जो बेचारा मर्चेंट है वो चिल्लाता है कि ये तो बात घूम फिर के फिर से मेरे ऊपर आ गई। अब वो राजा से क्या कहता है चिल्ला के कि माय लॉर्ड, ये जो दीवार थी ये मेरे फादर के टाइम में बनी, और ज्वेलरी का ऑर्डर तो मेरे फादर ने दिया ना कि मैंने दिया, एंड नाउ ही इज नो मोर, अब तो वो है नहीं, देन व्हाई यू आर जस्ट ब्लेमिंग मी, तो अब आप मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, एंड ही इज नो मोर, द किंग ऑर्डर टू हैंग द मर्चेंट ऑन स्टेक। अब राजा क्या कहता है, अब जब आपने अपने फादर की सारी जो घर जमीनें जायदाद है वो आपको मिली है, ठीक है, आपको भी वो मिल गई है,
एक ये आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो गई, पैतृक प्रॉपर्टी। तो जब मिली है तो आपके पापा का जो सिन है जो वो करके गए हैं, यानी कि एक तरह से उन्होंने कहा कि वो पाप था ये जो उन्होंने किया, अब इसका भुगतान भी आपको करना पड़ेगा। जब सब कुछ तुम्हें मिल गया है, उनकी प्रॉपर्टी मिल गई है, तो उनकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। ठीक है, देखिए नाउ you can imagine, you can find that how stupid he was. The king ordered to hang the merchant on a stake in place of his father, कि अब अपने फादर की जगह तुम फांसी पे लटकोगे, because someone had to hang। अब देखिए किसी न किसी को तो लटकाना था भाई, नहीं तो केस बीच में रह जाएगा, चाहे किसी को भी लटका दो पर लटका दो। ठीक है, देखिए यानी कि फांसी पे किसी को तो इनको हैंग करना है। आफ्टर दैट हैंग ऑन द स्टेक। नाउ द किंग ऑर्डर टू फाइंड अ फैट मैन। अब राजा ने कहा अच्छा इसमें एक लाइन रह गई है, ही वॉज फाउंड टू थिन, यानी कि अब जब उसको फांसी के फंदे के पास ले जाया गया, ही वॉज फाउंड टू थिन, यानी वो जो फांसी का फंदा था उसके गले में फिट नहीं आया, बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, वो पतला था। ठीक है, अब किंग ने क्या ऑर्डर दिया, टू फाइंड अ फैट मैन हु वुड बी फिटेड ऑन द स्टेक। एक ऐसे मोटे आदमी को, तंदुरुस्त आदमी को ढूंढ के लाओ जो इस फांसी के फंदे के लिए बिल्कुल फिट हो, क्योंकि उन्हें तो फांसी देनी थी, किसी को भी दे दो। ठीक है, आफ्टर दैट नाउ आई थिंक यू आर गेटिंग द आइडिया कि किसको पकड़ के लाने वाले हैं, राजा के जो सिपाही हैं। किंग सोल्जर्स फाउंड द डिसाइपल हु बिकेम फैट आफ्टर ईटिंग टू मच। अब उनके हाथ वही लग जाता है अनफॉर्चुनेटली जो खा खा के मोटा हो चुका होता है। कौन है वो इसमें? डिसाइपल। ठीक है, नाउ ही रिमेंबर्ड हिज गुरु। अब बेचारा डर जाता है, अपने गुरु को याद करता है कि हाँ गुरु ने सही कहा था, मुझे यहाँ से जाना चाहिए था, अपने लालच की वजह से आज मैं फंस गया हूँ। ही अराइव्ड देयर बाय हिज मैजिकल पार्ट। अब पहले टाइम में जैसे जादू से प्रकट हो जाते थे, तो गुरु को याद किया, गुरु जी सामने प्रकट हो गए। दे बोथ मेड अ प्लान एंड स्टार्टेड फाइटिंग। दोनों ने, यानी कि गुरुजी ने उनके अपने डिसाइपल के कान में कुछ कहा, एक प्लानिंग उन्होंने की दोनों ने मिलके, और दोनों ने झूठ मूठ का लड़ना स्टार्ट कर दिया। किंग आस्क्ड द रीजन ऑफ फाइटिंग। अब राजा थोड़ा कंफ्यूज हुआ और पूछा कि अरे भाई क्यों लड़ रहे हो आप आपस में। देन गुरु सेड वन। गुरु ने क्या कहा? वन हु वुड बी हैंग फर्स्ट, कि जिसको भी पहले लटकाया जाएगा फांसी पे, वुड बी द किंग इन द नेक्स्ट बर्थ। अगले जन्म में वो इस राज्य का क्या बनेगा? राजा बनेगा। एंड द सेकेंड वन हु वुड बी द मिनिस्टर, और जो उसके बाद लटकाया जाएगा फांसी पे वो उसका मिनिस्टर बनेगा। द किंग एंड द मिनिस्टर डिडंट वांट टू लूज देयर किंगडम। अब राजा और जो उसके मंत्री थे वो नहीं चाहते थे कि अगले जन्म में भी उनका राज्य कोई छीन ले। ठीक है, एंड हैंग देमसेल्फ। अब उन्होंने क्या करा? अपने राज्य को बचाने के लिए दोनों उनकी जगह खुद ही फांसी पे लटक गए। ठीक है, नाउ द सब्जेक्ट गॉट रिड ऑफ द किंग एंड हिज वियर्ड रूल्स, यानी कि अब जो सब्जेक्ट प्रजा थी, छुटकारा मिल गया उनको उस राजा से और उसके अटपटे रूल से। एंड अपॉइंटेड गुरु एंड हिज डिसाइपल देयर किंग एंड मिनिस्टर रेस्पेक्टिवली। और क्योंकि गुरु और शिष्य की बुद्धिमत्ता की वजह से ही वो अपने राज्य को बचा पाए, उन लोगों के स्टूपिड रूल से अपने आप को निकाल पाए, तो उन लोगों ने, यानी वो जो प्रजा थी, राजा और मंत्री की जगह उनके डेथ के बाद, यानी उनके जब उन दोनों ने फांसी लगा ली, खुद ही लटक गए फांसी पे, तो गुरु को और उनके शिष्य को वहाँ का राजा और मंत्री बना दिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, that was the summary, that was the explanation of the chapter. I hope you liked it and you understand it. Please do like, share and comment if you find any mistake, or if you like it you can comment over it, so that I'll get motivation for making my next video. Till then, goodbye, take care.